So, hello students. Welcome back once again to Online Shine app, and I, Professor Rahul Mukherjee, welcome you to the lecture of Logistics, a short video on Module 4, Chapter 2. Now, Chapter 2 of Module 4. आपको लगता नहीं है कि क्या बाकी रह गया है? सेकेंड मॉड्यूल में हमने ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग से लेके इन्वेंट्री मटेरियल हैंडलिंग तक ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया. एंड नाउ in the third module we also studied about inventory management. Fourth module mein mainly what we are going to study is we started with costing, logistical costing, modern logistical infrastructure humne padha. Now in the second chapter we will be learning about role of IT in logistics. Yes my students, it is information technology. Now IT की जब बात करते हैं logistics में कैसे जरूरी है, तो जब आप e-commerce से ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो तब आपने देखा होगा ऑर्डर करते ही सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्ड हो जाता है, कंपनी को इंटीमेशन चला जाता है, कंपनी वेयर हाउसिंग से कोऑर्डिनेट करके वो चीज़ कितने दिन में अवेलेबल है आपको बता देती है, पैकेजिंग शुरू हो जाता है, रेडी करते हैं वो गुड्स को, आप तक कैसे पहुंचाएंगे, कितने दिन में पहुंचाएंगे, एंड फाइनली इट इज डिस्पैच्ड एंड यू गेट इट विद इन 3 to 4 days, मैक्सिमम 7 days. दिस इज IT कि उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, अगर नहीं है कोई प्रोडक्ट डिमांड में है तो वो मंगा लेंगे, रख लेंगे. दिस इज हाउ थिंग्स आर मैनेज. सो इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड IT is a part and parcel of logistics to make things faster, smoother, things available on time so that they can earn good money and so on. It reduces human error, it makes things perfect enough and faster, जैसे मैंने already कहा. So the very first thing that logistics uses as IT tool is radio frequency identification. It's a method, basically it's a method of storing data and retrieving it via radio waves. आपने सुना होगा कि FM channels जिससे चलते हैं उसका help लेके they try to manage the functions. It uses radio frequencies to transmit data. RFID is mainly used in supply chain management to improve the efficiency of inventory tracking. Inventory कहाँ पहुँचा, कब तक पहुँचा, कितना है, and management, and also saves time and operational cost. It has very higher accuracy. The next is EDI. आप लोगों ने शायद सुना होगा Electronic Data Interchange. ये mainly email जैसा ही काम करता है. Whatever is the information is electronically transferred to the company who are into it, who are concerned with it. And finally जब उनको ऑर्डर मिल जाता है they make the goods ready and transport it to the customer or to us who are in need, and we ultimately send it to the customers. So यहाँ पे PPT में मैंने पूरा डिटेल शेयर किया. You can go through it and understand it much better. Next is satellite communication. हम सब जानते हैं कि सैटेलाइट्स भारत से भी आजकल मून में काफ़ी ज़्यादा भेजने लगे हैं and it keeps on revolving around the moon. एंड फाइनली वी गेट सिग्नल्स, जो फोन जो टेलीविजन के सिग्नल्स है, रेडियो के सिग्नल्स है. सो ये डिश लगा के, जैसे आपने मीडिया चैनल्स के व्हीकल के ऊपर देखा होगा, डिश लगा के दे कोऑर्डिनेट. सो दिस इज वन ऑफ द वेज बाय विच लॉजिस्टिक्स मैनेजेस इट्स डेटा, ट्रांसफर्स इट्स डेटा एंड ग्लोबली यूज कर पाते हैं. सो इट प्रोवाइड्स फास्ट एंड हाई वॉल्यूम channel for information movement around the globe. Communication dishes, dish TV जैसा, are put on the top of the vehicles, and communication between the drivers and dispatchers can be well maintained. It provides up-to-date information about the consignment, about the contract, कहाँ तक पहुँचा है goods. It's mainly used in retail chains जहाँ पे daily sales वगैरह के updates देने होते हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होता है to coordinate with the headquarters. The next is GPS. आप सभी ने सुना होगा, मोबाइल में भी यूज करते होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके थ्रू हम ट्रैक कर पाते हैं कि गुड्स इन ट्रांजिट, जो वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन है, वो कहाँ तक पहुँचा है और हमें कब तक मिलेगा, या तो हमसे निकल चुका है और कस्टमर को कब तक मिलेगा. अकॉर्डिंगली हम उनको अपडेट करते हैं, कस्टमर्स को अच्छा लगता है, वो भी अपने प्लान्स अकॉर्डिंगली आगे बनाए रखते हैं. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये मॉड्यूल 4 के चैप्टर्स बहुत छोटे शॉर्ट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है. जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक्स अच्छे से करना, पीपीटी से, टेक्स्ट बुक से आपको बेनिफिट मिलेगा. द लास्ट टॉपिक हियर इज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज LIS. कि IT डिवाइस को चलाने में, इंप्लीमेंट करने में आपको क्या सिद्धांत फॉलो करने, प्रिंसिपल्स फॉलो करने. सो द फर्स्ट इज यू नीड टू मैनेज इट, कंट्रोल इट वेरी वेल, यू नीड टू मेंटेन इट. उसका अवेलेबिलिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, टाइमलीनेस. इट हेल्प्स इन गिविंग टाइमलीनेस, बट यू हैव टू सी हाउ यू टेक एडवांटेज ऑफ इट. फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रख सकते हो आप अपने सॉफ्टवेयर में, वो इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा IT डिवाइस या टूल सेलेक्ट के लिए कीजिए जो आपके बिजनेस के हिसाब से सुटेबल हो, फेवरेबल हो.
अप्रोप्रिएट फॉर्मेट इज नेसेसरी, अदरवाइज आपका बिजनेस कुछ और चाहता है और आप कुछ और डिलीवर कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए. एंड फाइनली इट इज एक्सेप्शनल, दैट इज हैंडल सिचुएशंस अकॉर्डिंगली. आपको ऐसा आईटी डिवाइस लेना है, या तो वो जीपीएस हो, या तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, या तो आरएफआईडी हो, एक्सेट्रा. यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट सूट्स योर कंपनी, योर प्रोसेसेस, योर बिजनेस, योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज द बेस्ट, और आपके कस्टमर्स कौन से चीज़ से, कौन से सर्विस से खुश हैं. तो ही क्या होगा कि आप उनको राइट सर्विस दे पाओगे, एंड अकॉर्डिंगली दे विल बी हैप्पी विद द काइंड ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, हैविंग कंसर्न फॉर देम. दिस इज द मेन पॉइंट. सो my dear students and friends, this was the second topic, that is fourth module, chapter 2, which was on IT in logistics, and with it the elements, the devices of IT that is used to maintain logistics. Important है fourth module के लिए. The last chapter which we will be doing in the next video is the third and the last chapter under module 4 and end of your syllabus. The chapter talks about logistic and network analysis. मैं शुरू से कहता हूँ कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज वो चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि लॉजिस्टिक्स में नेटवर्क एनालाइज कैसे करना है, और कैसे बेहतर तरीके से नेटवर्क्स में टाइड अप रह के चीज़ों को कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाना है, बेटर सर्विस देना है, और सबको बाउंडेड रखना है कम से कम कॉस्ट में, बेस्ट टू बेस्ट सर्विस. सो this is about the next chapter that we are going to do in module 4, and that will be the end of the syllabus. So I hope so you are solving the MCQs, making yourself prepare for any exam, whether it is MCQ exam or written theory exam. Also you are going through my PPTs, and along with that go through the textbook also. It will help you a lot. Till then, take care of yourself. Stay tuned to Online Shine app and Professor Rahul Mukherjee's video. Take care.